So far we have had 3 lectures, and today is the final one. So before we proceed, let us listen to this bhajan. प्रेम की मूरत, भक्ति की सूरत, मन में हमारे बस जाओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। धरती से अंबर तुम ही तुम, धरती से अंबर तुम ही तुम, रंग रंग में लहराओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। So our resource person today is Professor Amita Mishra, my personal favorite also. And ma'am has been working in the Department of Philosophy, Patna Women's College, Patna University since 1986. Madam was nominated member of the advisory board of Bihar Darshan Parishad in the general body meeting of Bihar Darshan Parishad, and is a reviewer of Journal of Indian Council of Philosophical Research, New Delhi. Dr. Amita has been recipient of Exemplary Teacher Award, Institutional Researcher Award, and Outstanding Teacher Award for imparting value-based education. Madam has several publications in journals of high repute, chapters in books on philosophical reflections on professional ethics, ethics and values in teaching profession, and Gandhi ji ki Bunyadi Siksha ki Prasangikta. Today, she is going to talk about relevance of Gandhi's social and political thoughts. A very warm welcome to you, ma'am, and Yes. over to you for your session. Thank you, Pasna. I would like to share screen, so please allow me to do so. Prabhas sir. So, good evening, everyone. So, I think most of your students have joined.
Yes. Ma'am, there are people from outside, and I just want to say, probably I said Mishra. It is Dr. Amita Amita Jaiswal. Jaiswal, yeah. Yes, Amita Jaiswal yes, from yes. Department of Philosophy, Patna Women's Yes. College. There are outsiders also, ma'am, teachers from Yes. other colleges. Upasna, Yes, ma'am. is my presentation visible? Just now, no, ma'am. Acha, then what? Acha, 1 minute. So I have to share screen. Yes. Yes, ma'am. Now it is coming, but yes, ma'am. Ah. Probably click on that. Yeah. Now it is visible, ma'am. Is it okay? Yes, yes, ma'am. Nah. Again, it is gone. Yes, ma'am. Click on that. Yes. Yeah. So once again, good evening, everyone. So we have just completed 75 years of our independence and are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. We have also celebrated 153rd birth anniversary of our father of the nation, Mahatma Gandhi. And this is the most apt time, the right time to remember Gandhi ji, जिन्होंने हमें आजादी दी बिना खटक बिना ढाल. So I congratulate Dr. Upasna, Head of Department of Education, all the teachers of the Department of Education for organizing this online lecture series. And I hope all the 3 lectures that you all have listened to must have been very fruitful for you. And today, the last lecture I am giving on the relevance of Mahatma Gandhi's social and political thought. But at the very outset, I would like to tell you that Gandhi ji is no ordinary person whose thoughts and actions can be discussed or even enumerated in one lecture. So Gandhi ji एक युग पुरुष है, एक युग दृष्टा है. उनके विचारों को सबसे पहले तो समेटना ही इतना कठिन है कि मुझे खुद ही इसके लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ी कि कैसे इस छोटे से घंटे के लेक्चर में उनके सारे विचारों को समेट करके आप लोगों के आगे प्रेजेंट करें. क्योंकि गांधी जी का उनका जो लाइफस्टाइल है, गांधी जी का उनकी जो जीवन शैली है, या फिर उन्होंने जो हिज वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है, उनका एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है, ये सारी जो बातें हैं उनके जीवन से रिलेटेड इतनी बातें, इतनी घटनाएं हैं और हर घटना के साथ उन्हें ये कुछ शिक्षा जुड़ी हुई है. इसलिए बहुत मुश्किल है गांधी जी को एक लेक्चर में प्रेजेंट करना या उनके सारे विचारों को आपके सामने लाना. फिर भी मैंने कोशिश की है उनके विचारों को, उनके मुख्य जो उनकी आइडियोलॉजीज है उनको एक बार हम लोग पहले तो याद कर ले और फिर ये देखें कि कैसे आज के युग में भी वो कितने रेलेवेंट है, कितने प्रासंगिक है. तो गांधी जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि एक वो विजनरी लीडर थे. इसलिए सबसे पहले उनका जो विजन था वो ये था कि हम जिस समय अगर हम उनके जीवन काल में जाएं तो हमारे देश को आजादी दिलाने का जो उनका मकसद हुआ वो सबसे बड़ा उनके आगे चैलेंज था. और पूरे देश के लोगों को, अलग अलग संप्रदाय थे, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग जगह रहने वाले लोग, और उस पर से ब्रिटिश राज का जो हमारे ऊपर ये था आधिपत्य था. तो उस स्थिति में, उस गुलामी की स्थिति में देश को आजादी दिलाने के लिए जो उन्होंने साहस किया और उसके लिए जो उन्होंने विचार दिए, विचारों को पहले उन्होंने विचारों को बनाया और उसको लोगों के आगे प्रेजेंट किया और लोगों को उससे इन्फ्लुएंस किया ताकि हमारा देश जो है वो
आजादी की प्राप्ति कर सके, हम एक आजाद देश हो सके। तो यही सबसे बड़ी चीज थी जिसे हमें समझना है गांधी जी के बारे में, और कैसे उन्होंने हमारे उनके जो विचार हैं वो पूरे देश में परिवर्तन लाए। हम गुलाम से आजाद हो गए, और आज के समय में पूरा विश्व इस बात को मानता है कि अगर इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, यू हैव टू बी दैट चेंज। तो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े वो पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन उन्होंने आजादी हमें दिलाई। समाज सुधारक के रूप में अगर देखा जाए तो वो एक समाज सुधारक बनकर नहीं आए थे, पर जो उन्होंने समाज के बारे में उन्होंने जो दार्शनिक विचार दिए, या उन्होंने समाज को जिस तरह से देखा और उसमें जो सारी बातें उन्हें अच्छा नहीं लगा, उसको उन्होंने रिफॉर्म करने की चेष्टा की या उसे खत्म करने की चेष्टा की, उन सारे प्रैक्टिसेस को, तो वो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट की तरफ भी बन गए। और सबसे बड़ी बात है कि ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। उनको इसलिए चिंतक कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो चिंतन किया, जो उन्होंने विचार पद्धति का निर्माण किया, और उस विचार पद्धति से हमारे देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया, तो कहा तभी हम उन्हें कहते हैं कि ही इज अ ग्रेट फिलोसोफर। सो गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड पर के दर्शन विचारों पर है, क्योंकि वो उनका जो विचार है वो कोई एक खास पीरियड या एक खास समय के लिए नहीं रह गया था। उनका विचार आने वाली जो सब मानव जाति है उसके लिए भी है, और अनंत काल तक ये रहेगा। तो आज 150 साल के बाद भी उनके विचार प्रासंगिक हैं, और आने वाला जो समय है उसमें भी उनके विचार प्रासंगिक अवश्य होंगे। अब हम अगर थोड़ा सा देखें कि गांधी जी के ऊपर विचारों पर किन लोगों का प्रभाव पड़ा, तो कहा जाता है कि गांधी जी के विचार जो हैं वो उनके खुद अपने विचार तो अवश्य थे। उन्होंने वो तो एक महान चिंतक थे। वो तो एक एक घटना से उनकी चिंतन जो है वो जागृत हो जाती थी। एक एक घटना से उनके जीवन में कितने प्रकार के विचार आते थे, वो जो हमारे सामने वो रखते थे, पर तभी भी वे इन्फ्लुएंस्ड थे, उन पर प्रभाव पड़ा था वेद, उपनिषद, गीता, रामायण इत्यादि का। फिर वो क्रिश्चियनिटी से भी, क्रिश्चियन धर्म से भी प्रभावित थे। क्रिश्चियन धर्म में जो फॉरगिवनेस का, लव का, डूइंग गुड टू अदर्स, ये सारी जो उसमें मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, उससे वो प्रभावित थे। वे जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे, खासकर उसमें जो फिजिकल लेबर की बात कही गई उससे प्रभावित थे। फिर लियो टॉल्स्टॉय के जो विचार हैं उनसे भी प्रभावित हुए। उनका कहना था, लियो टॉल्स्टॉय का एक विचार उन्हें बड़ा प्रभावित किया था, वो था कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, तो ईश्वर तुम्हारे अंदर ही वास करता है। फिर डेविड थोरो का विचार था, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस के बारे में कहा है, उससे भी वो बहुत अधिक प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि दरिद्र में नारायण का वास होता है, उससे वे प्रभावित थे। और सबसे बड़ी बात कि वो जो मानवतावादी जो दर्शन है, ह्यूमनिज्म, वो दर्शन जो कि मानव को केंद्र में रख करके अपने विचारों को देता है, जैसे महात्मा बुद्ध का दर्शन है, वो बुद्धिज्म है, वो भी एक ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी है। उसी तरह से गांधी जी के जो विचार हैं वो इन सभी से प्रभावित थे। पर इतना अवश्य कहेंगे कि गांधी जी का जो विचार है वो खुद उनका ही अपना जो है वो उनकी अपनी ही विचार परंपरा से, अपनी ही विचार के सांचे में ढले हुए विचार हैं। क्योंकि गांधी जी के साथ एक बड़ी अच्छी बात है, वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी वो लेके चलते थे। आधुनिक विचार जो चल रहे थे उससे भी वे प्रभावित होते थे, लेकिन फिर भी जो है
वो अपने आप में अपने विचार को अपने आप में समा के रखते थे और उसी हिसाब से चलते थे जैसे जो उनको सही दिखता था। उनका कहना भी था, एक बात वे हमेशा कहते थे कि आप अपने मन के खिड़की दरवाजों को खोल के रखिए। So he always used to say that develop a mind like a room with many open windows. Let the breeze blow in from all sides, but refuse to be blown away. तो अपने तरह उनका कहना था कि हम क्लोज्ड माइंड से कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने दिमाग को अपने मन को खोल के रखिए और उसके बाद जो है वो आप सबसे सीखिए, सबसे सब कुछ लीजिए, पर वो करिए वो जो आपके मन के अनुसार जो सही रहे, उचित रहे। तो गांधी जी की जब आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो सबसे माने प्रमुख बात उनकी फिलॉसफी में है वो है अहिंसा और सत्य, और अहिंसा का टूल है सत्याग्रह। जो अहिंसा की अगर हम बात करते हैं, जो कि गांधी जी के नाम से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ जैसा लगता है कि गांधी जी यानी कि अहिंसा, पर अगर देखा जाए तो मैं तो फिलॉसफी के साइड से हूँ, तो अहिंसा की बात तो जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में और आगे भी बहुत सारे दर्शनों में दी गई है। लेकिन अगर हम तुलना करके देखें तो गांधी जी ने जो अहिंसा की बात कही और अब पूर्व में जो दर्शन में अहिंसा की बात कही गई, उसमें बहुत अधिक अंतर है। अंतर ये है कि पहले जो अहिंसा की बात की जाती थी, वो अहिंसा का नेगेटिव ही एस्पेक्ट था, जिसमें कहा जाता था कि आप जो है ये मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, किसी को मारिए नहीं, या फिर कहा गया कि अगर आप अहिंसा के पाथ पर चलते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैन में भी कहा गया, जैन में तो एब्सोल्यूट अहिंसा की बात कही गई कि एक छोटे से छोटे कीड़े को मत मारिए और चींटी को भी नहीं मारिए, और किसी भी तरह से किसी को, मनुष्य को, किसी भी तरह के जीव को, प्राणी को के जान लेने की या उसकी हत्या करने की का कोई अधिकार नहीं है। तो गांधी जी का वहां पर था कि अहिंसा किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए या व्यक्ति के उत्थान के लिए, किसी एक व्यक्ति के उत्थान के लिए चुना जाने वाला मार्ग था जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। गांधी जी ने अहिंसा की बात जब की तो वो उसका कुछ अलग ही उनका वो विचार था, संदर्भ भी उनका कुछ अलग कहा जाएगा कि सबसे पहले तो उन्होंने अहिंसा की जो बात कही वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं पर पूरे समाज के लिए उन्होंने बात कही, सामान्य लोगों के के लिए उन्होंने अहिंसा की बात को उठाया था कि अगर हमें आजादी प्राप्त करना है तो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा, और हम दूसरे के हिंसा का जवाब जो है वो अहिंसा से देंगे। अहिंसा का यहाँ मतलब था प्रेम, आत्मा की शक्ति, लव है, सोल फोर्स है, इसको कहा जाता है। और अहिंसा का जो इंस्ट्रूमेंट था वो उनके लिए था सत्याग्रह। अब एक और भी बात हम लोग को इसमें विचार करने योग्य है, वो ये है कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की जो बात की, उसके पीछे का जो अगर हम संदर्भ देखें तो वो जो उन्होंने सबसे पहले अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग किया वो था साउथ अफ्रीका में। और ये कहानी आप लोग सब जानते होंगे कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में जो उनके पास जेन्युइन टिकट रहते हुए भी उन्हें ट्रेन में वाइट लोगों के साथ सफर करने नहीं दिया गया था, और जिसके कारण और उन्हें उससे ट्रेन से उतार भी दिया गया था। और फिर बाद में जब उन्होंने ये समझा कि ये तो ऑपरेशन है, ये इनजस्टिस है, ये इंडियंस के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो सबसे पहले उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग उस समय किया था, और बाद में ये उनका हथियार बन गया। उन्होंने इसी हथियार के द्वारा
हमको आजादी भी दिलाई। तो अहिंसा की बात अगर करते हैं तो आप ये सोचिए कि गांधी जी के नैतिक साहस, गांधी जी के अंदर कितना अधिक नैतिक साहस था, क्योंकि जिस तरह से उनके जो ट्रीटमेंट उनके साथ साउथ अफ्रीका में किया गया, और उसके बाद वो अकेले वहां पर उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए, उनके अंदर की जो नैतिकता थी। इसके पहले गांधी जी के बारे में हम जो हमने पढ़ा है उससे ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा था कि गांधी जी जो आगे चल करके फादर ऑफ द नेशन और हमारे देश को आजादी दिलाने वाले व्यक्ति होंगे, ऐसा कुछ उनमें दिखाई नहीं पड़ता था। पर उनके अंदर वो नैतिक साहस था, तभी तो उन्होंने इस तरह से साउथ अफ्रीका में उन्होंने इस इनजस्टिस और ऑपरेशन के खिलाफ उन्होंने अपनी मुहिम चालू की। और फिर जब वो अपने स्वदेश लौटे, अपने देश लौटे, तो फिर उन्होंने इस तरह से अहिंसा का प्रयोग अंग्रेजों के विरुद्ध भी किया। तो गांधी जी का कहना था कि अहिंसा जो है वो हमको इनजस्टिस को फाइट करने के लिए और सारी पूरे समाज के लोगों के लिए ये है। सिर्फ एक व्यक्ति को उसकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाना नहीं है, बल्कि ये जो है अहिंसा वो पूरी मानव जाति को जो है वो इनजस्टिस, ऑपरेशन या फिर एक्सप्लॉइटेशन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग करना है। और सत्याग्रह से हम सभी जानते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, और ये कोई मामूली चीज नहीं था। गांधी जी का कहना था कि एक सत्याग्रही जो है वो अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है और वो सत्य के आग्रह के लिए हर प्रकार के कष्ट को सहने के लिए तैयार होता है। उन्होंने कहा कि अगर हम सब एक दूसरे के प्रति दुश्मनी निकालने के लिए अगर हम वायलेंस का प्रयोग करेंगे, तो अगर ऐसा करेंगे तब तो फिर संसार में फिर कोई जीव, कोई प्राणी बचेगा ही नहीं। सो एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। तो उन्होंने जो अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग किया और उस प्रयोग से उन्होंने हमारे देश को आजादी तक दिला दी, तो यही सोचने की बात है कि गांधी जी में कितना अधिक नैतिक साहस था, और वही नैतिक साहस जो है वो आज के समय में हम सभी व्यक्तियों में होना चाहिए। आगे भी जितनी भी बातें हम लोग गांधी जी के बारे में करेंगे, वो भले हम उसको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक या किसी भी कैटेगरी में बांट देंगे, पर आपको ये हमेशा ये महसूस होगा या पढ़ने से भी पता चलेगा कि गांधी जी में जो है वो नैतिकता की बात गांधी जी जो करते थे वो हर जगह वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कहीं भी हो, वो हर चीज को नैतिकता से ही जोड़कर उसको हमारे आगे रखते थे। और उनका कहना था कि जब तक समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना नहीं होगी, तब तक हमारा जो समाज है वो एक सही जगह नहीं होगा जहां हम रह सकते हैं। गांधी जी ने स्वदेशी की बात कही थी, स्वदेशी, और आपको मालूम है कि किस तरह से उन्होंने विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया और स्वदेश में बने हुए वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। वो खुद भी चरखा चलाते थे और वो सूत काटते थे, कपड़ा ये करते थे। तो इसलिए कि स्वदेशी जो है वो ना केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको भी डेवलप करता है। सो स्वदेशी इज एक्टिंग विदिन and from one's own community, both politically and economically, and it is the interdependence of community and self-sufficiency। और हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे आज के समय में जो हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसमें भी ये गांधी जी का जो स्वदेशी है और आत्मनिर्भर व्यक्ति को सेल्फ रिलायंट होना, ये सारी बातें जो हैं वो आज के समय में भी कितना रेलेवेंट हो गए हैं। फिर गांधी जी जो सत्य की बात करते थे, तो उनके लिए सत्य जो था वो ईश्वर से कोई कम नहीं। उनका कहना था
कि जो सत्य की बात हम करते हैं तो उनका झूठ तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलो, फिर उसके बाद किसी का अहित नहीं करना है। लेकिन ये तो हम रिलेटिव ट्रूथ हो गया, वो हमको हमारे हम जब सत्य बोलते हैं तो वो सत्य हमसे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द सेल्फ है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो गॉड है, द अल्टीमेट ट्रूथ इज गॉड। और जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो सत्य वहीं पर पाया जाता है। और सत्य के लिए उन्होंने, वो सत्य के लिए हमेशा खड़े रहते थे, और उनके विचार जो हैं वो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि कैसे हम सत्य की मार्ग पर चले और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। फिर गांधी जी की आइडियोलॉजी में एक बड़ा अच्छा जो उनका विचार था वो था सर्वोदय। सर्वोदय, अंत्योदय, मतलब समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्ति का जो विकास होना चाहिए उस पर वो बल देते थे कि किस तरह से इट इज अ टर्म ऑफ फॉर यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, प्रोग्रेस ऑफ ऑल। और ये रस्किन की अनटू द लास्ट से उन्होंने वे प्रभावित होकर के इस विचार पर आए थे कि सबका उदय हो, सबका विकास हो, और ये समाज में गरीब है, अमीर है, किसी भी तबके के लोग हैं समाज में, उन सबका जो वेलफेयर है वो सर्वोपरि है। स्वराज की बात करते हैं और उनकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज, वो भी कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। तो स्वराज की वो बात करते हैं, तो यहाँ स्वराज का अर्थ सेल्फ रूल तो हम लोग लेते हैं, पर सेल्फ रूल का मतलब क्या होता है? सेल्फ रूल का मतलब है कि हम अपनी इंद्रियों पर, हम अपनी वासनाओं पर, कामनाओं पर रिस्ट्रेंट करें, उसको हम नियंत्रित करें। अपने सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ रूल करके क्या होगा कि ना केवल हम अपने को संयमित करेंगे बल्कि और अपनी इच्छाओं पर संयम लाएंगे, तो उससे ना केवल मेरा सुख उसमें निहित है, बल्कि समाज में सभी लोगों का सुख उसमें निहित होता है। क्योंकि होता क्या है कि इंसान की इच्छाएं जो है वो अनंत होती हैं, और वो अनंत इच्छाओं के पीछे भागते भागते क्या होता है कि वो उसका कहीं से कोई अपने ऊपर रिस्ट्रेंट नहीं रह पाता है। इसलिए सेल्फ रिस्ट्रेंट जो है वही है मतलब आपका स्वराज का। यानी कि आप गांधी जी को स्वराज से उनका ये भी मतलब था कि किस तरह से हम अपने देश में अपना रूल, अपना शासन करें। पर मैंने बताया कि गांधी जी जो हैं वो हर चीज में नैतिकता को जोड़ते थे, उनके हर विचार में नैतिकता है। तो जब स्वराज की वो बात करते थे तो वहां पर न केवल अपने देश के स्वराज की बात कर रहे हैं कि देश में अपना रूल हो, बल्कि उनका कहना था कि हर व्यक्ति जो है वो भी अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेंट करे, आत्म संयमित करे, और स्वराज उसके अपने भी आत्मा पर, अपने भी विचारों पर, अपनी भी इंद्रियों पर उसका राज हो। तो स्वराज की बात उन्होंने कही। तो ये प्रमुख जो उनकी आइडियोलॉजीज हैं, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज, ये चीजें जो हैं वो उस समय तो थे ही, अब किस तरह से ये आज भी हम सबों को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं ये भी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। फिर गांधी जी की बातें जो हैं, अगर आप देखिएगा कि धर्म और मोरालिटी के बारे में, तो उनका कहना था कि धार्मिक होना आवश्यक है, ठीक है, धर्म करिए, पूजा पाठ, प्रेयर, गांधी जी खुद भी इतना प्रेयर करते थे, और पूजा पाठ सब करिए आप अपने 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 धर्म के हिसाब से आप अपना जीवन यापन कीजिए, पर आपको मॉरल और एथिकल होना भी आवश्यक है। सबसे पहले गांधी जी का कहना था कि अगर देखा जाए तो सभी धर्मों में समानता है, देयर इज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्म एक है, सभी धर्म जो है वो एक ही लक्ष्य की ओर जाने के अलग अलग मार्ग हैं। तो धर्मों में भिन्नता जो है वो केवल ऊपरी है, आंतरिक रूप में सभी धर्म एक है। इसलिए उनका कहना था कि देयर इज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। और अगर
ईश्वर की बात करें तो ईश्वर का कोई भी रूप आप दे दीजिए, पर ईश्वर है तो केवल सत्य। So, उनका कहना था कि ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ। और एक धार्मिक होना अलग बात है और एथिकल या नैतिक होना अलग बात है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो धार्मिक है तो वो बहुत मॉरल वैल्यूज का भी है या वो बहुत ही नैतिक है। गांधी जी का कहना था कि जरूरी ये भी है कि आप अपनी आत्मा को, मन को शुद्ध रखिए। तो एक ये विचार आता है स्थित प्रज्ञा का। स्थित प्रज्ञा वो है, एक्चुअली ये गीता का कॉन्सेप्ट है जिसको गांधी जी ने भी यूज किया था। उनका कहना था कि हम अपने हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखे। हर परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में वो गलत काम के लिए आगे नहीं बढ़े, मन की वृत्तियों को स्थिर रखे। पर्सन शुड बी ऑफ स्टेबल इंटेलेक्ट और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप एक समाज में रहते हैं तो आपको मिलजुल कर और भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहना है ना। उनका कहना था कि ना केवल इंसान इंसान में प्रेम हो, बल्कि इंसान को he has to coexist peacefully with the other forms of life in this world। तो जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, जो पूरा नेचर है, उसके साथ हमें कोएग्जिस्ट करना है। पूरे एनवायरनमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। और सबसे इम्पोर्टेंट उनका कहना था धार्मिक विचार और नैतिकता के बारे में कि टॉलरेंस का एक नेगेटिव मीनिंग भी होता है और एक पॉजिटिव मीनिंग होता है। टॉलरेंस का यहाँ मतलब केवल बर्दाश्त करना या टॉलरेट करना यहाँ नहीं है। उनका कहना था कि हमें जो है वो सभी धर्मों के विचार को एक्सेप्ट करना है। टॉलरेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। तो हमें एक्सेप्ट करना है और हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई है। हर धर्म में अच्छी बातें ही कही गई हैं, तो उन बातों को लेना, उन्हें एक्सेप्ट करना, पीस और हार्मनी के साथ रहना, ये धार्मिक होने का मतलब होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी का जो है वो 1 मिनट गांधी जी स्कीम ऑफ एजुकेशन। मैंने सोचा कि हमारे एजुकेशन की लड़कियां जो हैं वो सब ज्वाइन करेंगी, स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के बारे में, ऐसे तो आप लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे कि गांधी जी का मॉडल ऑफ एजुकेशन क्या था। तो गांधी जी का एजुकेशन जो था वो इंटेग्रल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था। उनका कहना था कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे ना केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा तीनों की ट्रेनिंग हो। और यहाँ भी वो मोरालिटी और स्पिरिचुअलाइजेशन की ही बात करते हैं कि जो एजुकेशन हमारा इस प्रकार का होना चाहिए ताकि हमारी अंदर नैतिक मूल्य डेवलप करे। और अगर देखा जाए तो आज के समय में सबसे अधिक आवश्यक जो है वो नैतिक आवश्यकता है नैतिक मूल्यों की। क्योंकि देखिए, हम तो पढ़ाई हम करते हैं, हम पढ़ाते हैं, आपको पढ़ते हैं, पर उस पढ़ाई से अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं या हम बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बना पाते हैं, उनमें नैतिक मूल्य नहीं डालते हैं, तो फिर हमारे गांधी जी के अनुसार वैसे एजुकेशन का कोई मायने नहीं है। तो एजुकेशन शुड बी सच that imparts moral values to the students, so providing value education to the children। और गांधी जी ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं, अगर चाहे तो अगर पूरे विश्व में अगर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दें। अच्छा, बच्चों की भी शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा था कि
कि शिक्षा जो है वो घर से शुरू होता है, एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम होम। तो पेरेंट्स शुड इम्पार्ट वैल्यू एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन थ्रू स्टोरीज एंड पैराबल्स, की कहानियों के माध्यम से हमें बच्चों को, अपने बच्चों को मूल्य सिखाना है। और उनका कहना है कि द प्रोसेस ऑफ रेफॉर्मेशन विल स्टार्ट विद द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। अगर हमें समाज को बदलना है तो हमें अपने बच्चों को के सही एजुकेशन पर ध्यान देना है। और एक इटालियन एजुकेशनिस्ट और पेडागोजिस्ट हैं मारिया मोंटेसरी, वो गांधी जी की एजुकेटिव पॉलिसीज को बहुत, प्रिंसिपल्स को बहुत अप्रिशिएट करती थी। तो उनका एक कोटेशन है कि इफ वी रियली वांट टू अचीव ट्रू पीस इन दिस वर्ल्ड एंड इफ वी रियली वांट टू फाइट अगेंस्ट वॉर, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम चिल्ड्रेन। तो अगर हम सच में समाज में शांति चाहते हैं, अगर हम हर तरह से वॉर को खत्म करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों से इस बात को स्टार्ट करना है चाहिए। क्योंकि इस बार ये गांधी जी भी, उन्होंने एक बार कहा था कि जो वॉर की बात अगर हम करते हैं, वॉर जो आजकल हम विश्व में कई जगह पर अभी देख रहे हैं, वॉर हो भी रहा है और वॉर की तैयारियां भी हो रही है। तो गांधी जी का कहना था कि wars are born in the minds of men and it is in the minds of men that their germs should be destroyed. तो इसीलिए गांधी जी का कहना था कि अगर हम, if we denounce egoism, or along with the three principal manifestations of struggle of power, money worship और licentiousness, तो इन evil से fight करने के लिए हमारे बच्चों के मन में जो वैल्यूज हैं, जो वैल्यू एजुकेशन है, वो हमें अपने बच्चों के मन में डालना है। तो इसलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन पर वो इसलिए जोर देते थे, वैल्यू एजुकेशन पर, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो, उनका मन जो है वो इस प्रकार का हो कि आगे चल के कभी भी उनके मन में वॉर का या लड़ाई का या वायलेंस का विचार उनके अंदर नहीं आ सके। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी है पेरेंट्स की और टीचर्स की। तो पेरेंट्स के साथ होता है कि चूंकि सिंस द ओरिजिनल कैपिटल विद द चिल्ड्रन स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स, क्योंकि उनका लाइफ जो है वो घर से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले जो है वो पेरेंट्स में वैल्यूज होना चाहिए, और उसके बाद टीचर्स, जब वो स्कूल आना शुरू करते हैं तो वहां पर टीचर्स उनके रोल मॉडल्स हैं। तो टीचर्स को जो है वो अपने व्यवहार से, अपने विचार से उनके अंदर वैल्यूज डालना है। क्योंकि कहा भी जाता है कि ये एग्जाम्पल्स एंड मॉडल्स प्ले एन इफेक्टिव रोल देन प्रीसेप्ट्स, वैल्यूज आर नॉट टॉट बट कॉट। तो टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट के मन तक, उनके हृदय तक पहुंचे। पढ़ाने के क्रम में वो उन्हें उनके हृदय को छू लेना चाहिए, ताकि उनके हृदय में जो है वो मूल्यों का घर बन जाए, मूल्यों के विचार उनके अंदर आ जाए। क्योंकि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बच्चों को वैल्यू एजुकेशन मिलना जरूरी है। और उनका कहना था कि स्पिरिचुअल एंड मॉरल एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, कि हमारे जो बच्चों की पढ़ाई के करिकुलम में मॉरल एजुकेशन हो गया, एथिक्स एंड वैल्यूज हो गया, ये सारी चीजें जो है वो उनमें नैतिक मूल्यों का किसी भी तरह से उनके मन में बीजारोपण जो है वो पढ़ाई के माध्यम से उनको स्कूल में और उनके घर में ये चीज हो जाना चाहिए। और कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि एजुकेशन ऐसा हो जिससे बच्चे का चरित्र निर्माण हो, क्योंकि आगे चल करके यही बच्चे जो हैं वो हमारे देश का के नागरिक बनेंगे, देश का बागडोर, या पूरे वर्ल्ड में ये रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे। तो अगर इनका एजुकेशन जो है वो इस प्रकार का होगा, वैल्यूज उनके अंदर होंगे, तो फिर आगे चल करके देश में वायलेंस की बात या डिसहार्मनी या वॉर इत्यादि ये सब हम रोक सकेंगे। तो उनका कहना था कि एजुकेशन शुड बी
ये such that it builds character of the student and imparts values on them. फिर एक गांधी जी का टेक्नोलॉजी पर विचार है. I think I have missed one. Gandhi's political thought. तो गांधी जी का एक टेक्नोलॉजी पर जो विचार है वो ये है. गांधी जी को कई बार कहा जाता है कि वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, और हिंद स्वराज में भी ये बातें बहुत ज्यादा की गई हैं कि गांधी जो है वो विदेशी सभ्यता के खिलाफ थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के यूज के बिल्कुल खिलाफ थे. तो ऐसी बात नहीं है. टेक्नोलॉजी अगर की बात अगर कहें तो गांधी जी तो खुद भी जब वो चरखा चलाते थे तो जो स्पिनिंग व्हील है उसमें भी कुछ टेक्नोलॉजी है, और वो आगे भी लोगों को प्रेरित करते थे कि किस तरह से आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करिए. तो टेक्नोलॉजी के खिलाफ वो नहीं थे. उनका ये नहीं विचार था कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल बुरा ही है. उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी तब तक सही है जब तक कि इट इज यूज्ड एज ए मींस बट नॉट एज एन एंड. कि टेक्नोलॉजी को ऐसा नहीं बनाइए, टेक्नोलॉजी का क्रेज के लिए क्रेजी नहीं होना है. टेक्नोलॉजी को आप यूज कीजिए, डोंट बिकम अ स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी. क्योंकि उनका कहना था कि हमारे जब हम मूल्यों की बात करते हैं, जब हम भारतवर्ष में आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो हमारे लिए रिलीजन एंड नॉट साइंस, एथिक्स नॉट टेक्नोलॉजी इज टू बी गिवन द हाईएस्ट प्लेस. तो टेक्नोलॉजी को हमको यूज करना है सिर्फ एक मींस की तरह, लेकिन जब टेक्नोलॉजी हम पर अगर हावी हो जाता है तो वो हमारे लिए जो है वो फिर उसका दुष्प्रभाव हो जाता है. तो गांधी जी के बारे में ये गलत धारणा हो जाती है कि गांधी जी जो है वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे. ऐसी बात नहीं है. टेक्नोलॉजी को वो यूज करने की बात करते हैं, पर उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी को हमेशा सिर्फ एक साधन बना के रखिए, और इतना भी नहीं टेक्नोलॉजी के पीछे जाइए कि कल को टेक्नोलॉजी आपके ऊपर हावी हो जाए. फिर मनुष्य का जो अपना ओरिजिनल जो उसका गुण है, जो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जो है वो सुप्रीम होना चाहिए. टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी सुप्रीम. सो ही इंसिस्टेड ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ टेक्नोलॉजी. इसलिए उन्होंने कहा कि उसको यूज करिए एज मीन्स एंड नॉट एज एन एंड. और उस समय की बात हिंद स्वराज में जब वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ ये बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें, तो उसमें कुछ कारण ये भी था कि वहां पर जब हमारे यहाँ क्या हुआ था कि वेस्ट में इतने सारे इंडस्ट्रीज इत्यादि जो हो गए थे, तो आपको याद होगा कि कैसे हमारे यहाँ बहुत सारी ये इंडिया में बहुत सारे मिल बंद हो गए थे, बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे, और बहुत ज्यादा पॉवर्टी आ गया था. तो उनका कहना था कि इंसान को अपना रोजगार मिले. वो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान के रोजगार के साथ खिलवाड़ करे और उसको आगे चल के परेशानी हो और उसको अपना जीवन यापन करने में ही दिक्कत हो. तो इसलिए उन्होंने इसीलिए कहा कि टेक्नोलॉजी को यूज करिए, पर एक लिमिटेड इसमें, डोंट बिकम क्रेजी फॉर टेक्नोलॉजी. और गांधी जी का कहना था कि वेलफेयर ऑफ ऑल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्. ये हमारे यहाँ वेद उपनिषद में ये प्रेयर ही होता था. और जैसा कि मैंने बताया कि गांधी जी जो है वो वेद उपनिषद से बहुत अधिक प्रभावित भी थे, और वैसे भी उनका कहना था कि अगर समाज के हर तबके का कल्याण नहीं होता है तो हमारा जो है वो समाज या देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है. इसलिए सर्वोदय की बात उन्होंने कही, सबके वेलफेयर की बात कही. और आज के समय में भी हमने देखा कोविड के समय में किस तरह से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ करके दुनिया के कई देशों में हम लोगों ने वैक्सीन भेजा, और उनके दुख को भी उसी तरह से देखा जैसे हमने अपने यहाँ अब कोविड से के पेशेंट्स के साथ जो हो रहा था. तो जैसे हम उनके लिए वैक्सीन की बात कर रहे थे, उसी तरह से हमने जो है वो विदेशों में भी कई देशों में हमने वैक्सीन को प्रोवाइड किया. तो हम सबके लिए सोचते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल की बात गांधी जी जो कहें, आज भी हम लोग सबके बारे में सोचते हैं. और गांधी जी का कहना है कि मीन्स जो है
ये जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स आप मत रखिए, क्योंकि नहीं सॉरी, इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कैसे हम जो है वो साधन का जो भी प्रयोग करते हैं। मान लीजिए लक्ष्य हमारा बहुत अच्छा है, लक्ष्य हमारा सबका वेलफेयर है, लेकिन अगर हमारा मीन्स गलत है तो हमारे लक्ष्य की पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा था कि साधन या मीन्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एंड। अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हमारा गोल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम उसके लिए रॉन्ग मीन्स अपनाएं, कई लोग शॉर्टकट कर देते हैं, कई बच्चे चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शॉर्टकट मीन्स अपनाएं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर वो गलत फिर रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो मीन्स गलत हो जाता है। इसलिए शॉर्टकट हो गया या ग्रीड हो गया या इस तरह से गलत मीन्स के द्वारा अगर हम अच्छे लक्ष्य की भी प्राप्ति करना चाहेंगे तो हमारे लक्ष्य की पवित्रता भी खत्म हो जाती है। फिर उनका कहना था कि मेन हो या विमेन, दोनों इक्वल है। सो ही एम्फसाइज्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ मेल एंड फीमेल। और विमेन एम्पावरमेंट की बात वो इस तरह करते थे कि वे बहुत सारी प्रथाओं का बहिष्कार करते थे, जैसे फीमेल फिटिसाइड हो गया, सती प्रथा है, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन है, ये सबके वो खिलाफ, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम, ये सबको वो उसके खिलाफ बोलते थे। तो उनका सोचना था कि जो औरतें हैं उनको अगर आप उनके साथ अगर इनजस्टिस होता है, उनका अगर ऑपरेशन होता है या एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो हमारे समाज में कभी भी आगे फिर प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। इसलिए इक्वालिटी ऑफ मेन एंड विमेन पर उनका विचार था और उनमें जोर देते थे। फिर डिग्निटी ऑफ लेबर, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेड लेबर, उनका कहना था कि मैनुअल लेबर, और आप जानती हैं गांधी जी के अपने जीवन में कि वो सारा काम सफाई से लेके सारा काम वो अपना खुद ही करते थे। और उनका कहना था कि शारीरिक श्रम जो है वो उतना ही शुभ है, गुड है, जितना कि कोई भी प्रकार का श्रम। तो हर तरह का लेबर जो है वो डिग्निफाइड है। और किस तरह से आपने देखा होगा कि उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई, अनटचेबिलिटी को खत्म किया, और उनको जो स्कैवेंजर्स थे उनको वो हरिजन करके बुलाते थे। तो उनका कहना था कि इन हर व्यक्ति जो है वो इंडिविजुअल इज एन एंड, हर व्यक्ति एक जो है वो स्वयं में एक अपने में एक व्यक्ति है जिसकी एक डिग्निटी है, और हर ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी है, हर ह्यूमन बीइंग का अधिकार है, और उस अधिकार को, उसके राइट्स को, उसकी डिग्निटी को सम्मान देना ये हमारा कर्तव्य है। सो एवरी इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड एज एन एंड, नेवर एज ए मीन्स। और स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अभी आप अपने समय में भी देख रहे हैं और हमने पहले भी देखा है कि किस तरह पॉलिटिक्स मतलब पूरा करप्शन। सो पॉलिटिक्स इज इक्वेटेड विद करप्शन। पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि सब कुछ जायज है, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि कभी भी नहीं, आप पॉलिटिक्स की बात करिए, राजनीति की बात करते थे। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने हमारे देश को आज़ादी भी दिलाई, तो कभी भी उन्होंने हिंसात्मक तरीके को नहीं अपनाया, और हमेशा अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास के आधार पर वो आगे बढ़े। तो पॉलिटिक्स में भी आध्यात्मिकता की बात करने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो ये सारी बातें जो हैं, उनके विचार जो हैं वो हम लोगों ने देखा, और किस तरह से फिर हम देखते हैं कि आज के समय में उनके सारे विचार कितने प्रासंगिक हुए। जैसे सेक्युलर हुआ हमारा प्रियम्बल में, जो हमने ये सेक्युलर वर्ड को ऐड किया 42nd अमेंडमेंट से, किस तरह गांधी जी ने बताया था कि वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे, और उन्होंने टॉलरेंस की बात कही, और किस तरह से आज हमारे संविधान में भी ये वर्ड ऐड हो गया है दैट इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की बात आज हम कर रहे हैं, यही बात गांधी जी भी कहते थे।
his vision of self-reliant India. आज हम हर जगह इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, और हम सभी देख रहे हैं कि ये हर क्षेत्र में, इवन कि डिफेंस में, हर क्षेत्र में हम इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हो रहा है, और पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि भारत में जो है वो सेल्फ रिलायंस इतना अधिक बढ़ गया है। हमारे स्टार्टअप्स जो हैं वो हर चीज जो है, जो कुछ भी हम जिस चीज के लिए हम विदेशों पर निर्भर रहते थे, आज वो सारी चीजें जो है वो हम अपने देश में ही बना रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये गांधी जी का सपना था जो आज हमारे देश में ये पूरा हो रहा है। फिर स्वच्छता की बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, और गांधी जी ने स्वच्छता पर इतना अधिक जोर दिया, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और आज के समय में देखिए कि ये जो गांधी का सपना था वो भी फुलफिल हो रहा है, और गांधी जी के स्वच्छता ही सेवा है तो हमने स्वच्छ भारत अभियान के रूप में लिया है। और आज हम देश का हर नागरिक जो है इस मिशन में अपना योगदान दे रहा है। आप कोई भी हम लोग जो है वो कभी भी आज के समय में कहीं भी हम लोग लिटरिंग नहीं करना पसंद करते हैं। कहीं कुछ अगर आप देखते भी हैं तो हम लोग उसको सफाई के लिए अग्रसर हो जाते हैं, हटा देते हैं कि चलो ये रास्ते में गिरा हुआ है, या हमारे घर में गंदगी है, या बाहर भी गंदगी है। आज के समय में हम कभी भी रोड पर या कहीं पर कुछ फेंकने से कतराते हैं, क्योंकि हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा जो समाज है, हमारा जिस जगह हम रहते हैं एनवायरनमेंट वो स्वच्छ है। तो ये सारी बातें गांधी जी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गांधी जी कहते थे कि अर्थ हैज इनफ फॉर ह्यूमन नीड्स बट नॉट फॉर ह्यूमन ग्रीड। अगर देखा जाए तो हमारे पास इतना अधिक है हमारे संपदा कि हम सबकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, पर अगर लोभ की बात करें तो तब तो हमारे यहाँ जो कुछ भी है वो भी बहुत कम पड़ जाएगा। तो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वाटर हो या फिर जितने भी संसाधन है, हम सबको बड़ा केयरफुली यूज करते हैं ताकि जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज बचा कर रख सकते हैं। फिर कैसे हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, और रिन्यू करके हम एनर्जी को और इसको डेवलप करें ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी ये सारे संसाधन मिल सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं और उसके लिए जो भी एफर्ट कर रहे हैं, वो सब ये सारे विचार जो है वो गांधी जी ने उस समय भी ये सारी बातें उन्होंने की थी। तो देखा जाए तो हमारा गांधीयन जो मिशन है या विजन है वो आज पूरा साकार हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में गांधी जयंती को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये भी हमारा गांधी जी, पूरे विश्व का गांधी जी के लिए ये ट्रिब्यूट है कि हम उनके जन्म दिवस को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में उसको हम लोग मना रहे हैं। फिर गांधी जी जो समाज में समानता की बात करते थे और किस तरह से वो जाति प्रथा और जाति व्यवस्था या इसके व्यवस्था के खिलाफ बोलते थे, तो वो समाज में समानता की बात करते थे। तो आज के समय में देखिए कि आज हम चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा या आयुष्मान भारत के द्वारा समाज में हम किस तरह से एकता और सामंजस्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी थॉट ऑफ ए सोसाइटी विथ नो पॉवर्टी, नो अनएम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ये सारी जो उनकी आइडियोलॉजीज जो हैं वो आज हमारी जो सरकार है उसके लिए दिशा निर्देश का काम कर रही हैं, और सारी योजनाएं जो हैं वो गांधी जी के ही फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि गांधी जी इज नॉट द पास्ट, ही इज द फ्यूचर, ही इज एन अर्ली साइन ऑफ व्हाट वी कैन बी। तो गांधी जी को एक युग पुरुष के रूप में इसलिए भी हमने माना कि उन्होंने जो विचार दिए हैं वो केवल अतीत के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली जो भविष्य में जो हमारी पीढ़ी होगी
उसके लिए भी प्रेरणादायी होंगे। तो हम मैंने जो शॉर्ट में मैं बता सकती थी उनसे मैंने बताया गांधी जी के बारे में, पर इतना जरूर है कि गांधी जी हमारे लिए इंस्पिरेशन है और आप सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए इंस्पिरेशन है। और कहा भी जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि एक ऐसा हाड़ मांस का व्यक्ति कभी था, ऐसा आगे के जनरेशन को अगर बताया जाए तो उन्हें विश्वास नहीं होगा। तो ये सारी बातें हमें याद करने की, हमें याद दिलाती है कि गांधी जी जो हैं वो हम सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और हमारा जो उनके प्रति ट्रिब्यूट होगा वो यही होगा कि हम उनके बताए हुए मूल्यों को अपनाएं और उसे अपने जीवन में अपनाएं भी, इम्प्लीमेंट करें और लोगों को प्रेरित करें कि उनके बताए हुए जो आदर्श हैं उसको अपनाएं। क्योंकि लाइफ तो सब लोग जी लेते हैं और अच्छा ही लाइफ हम लोग सब जीते हैं, और संसाधन की हमें कमी भी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पास हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ करके जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो सारे संसाधन भी हम पैसे से खरीद सकते हैं। लेकिन तब है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अगर करें या फिर आत्मनिर्भर बात की बात करें तो एक समय ऐसा भी आएगा तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो ना केवल आज हम प्रेजेंट में हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, बाकी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी सुखी रहेगी, खुश रहेगी। उसके लिए अगर हम सोचते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और इसके लिए गांधी जी के विचारों को अगर हम अपनाएंगे तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी वो भी सुख, शांति और खुशी से जीवन यापन करेंगे। तो उनका चाहे वो सत्य हो, अहिंसा हो, सर्वोदय हो, ये सारे जो आदर्श हैं उसे अगर हम अपनाते हैं तो हमारे लिए संसार में, हमारे लिए जो इतनी सारी परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी और हमारा वर्ल्ड जो है वो पीस और हार्मनी होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही सुखद ये होगा अनुभव। So thank you everyone for your patient listening. So Thank you so much, ma'am. It was indeed a very good presentation. और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने जिस सरल और सहज वे में अपने पूरे प्रेजेंटेशन को दिया आज, तो एक पूरा जो ओवरव्यू है गांधीयन फिलॉसफी का, मुझे लगता है आज सबके सामने आपने रख दिया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अभी अगर और कोई ऐसे हैं जिनको क्वेश्चंस पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं अपना। यस मैम, वन क्वेश्चन है। हाँ पूछे। ये मैम, जैसे कि लोग सक्सेस के लिए कुछ गलत काम कर लेते हैं और सक्सेस ले लेते हैं, लेकिन है क्या कि अगर नैतिकता की बात की जाए तो वो उस रास्ते पे चल के लेना बहुत कठिन होता है। तो इसमें एडजस्टमेंट कैसे किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ गांधीयन थॉट? अगर गांधी जी के हिसाब से अगर चला जाए तो अनैतिक होकर के कुछ भी हासिल करना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि गांधी जी के लिए तो वर्क इज वर्शिप जो है, और हर जगह वो नैतिक मूल्यों की बात करते हैं और करना भी चाहिए। और हमें अगर गलत तरीके से अगर हम कुछ भी हासिल करते, देखिए आप भी देखते होंगे, न्यूज में भी हम देखते हैं कि ठीक है कुछ लोग अगर बच भी जाते हैं, लेकिन काफी लोग जो हैं आज के समय में गलत जो काम करते हैं या गलत तरीके से पैसा कमाते हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो आज नहीं तो कल उन पर गाज गिरता ही है। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए कि आज आपको शॉर्ट टर्म उससे फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन आगे चल के खुद आपको अपनी अंतरात्मा भी अजीब लगेगा कि हम गलत तरह से हम ये हासिल किए हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाइएगा। क्योंकि अगर हम ईमानदारी से और सही रास्ते पर चल करके थोड़ा भी अगर हम खुशियां या पैसे जो भी है उसको हासिल करते हैं तो उससे जो संतोष मिलता है
और जो हम गलत तरीके से कुछ ज्यादा भी हासिल करते हैं तो वो हमें हमेशा अंदर से कुरेदता है, क्योंकि हर इंसान में, गांधी जी ये बात बोलते थे कि हर इंसान गुड है, एवरी मैन इज गुड, गुडनेस इज इनहेरेंट इन एवरी पर्सन। देखा जाए तो हर के अंदर ये है, इंसानियत है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस इंसानियत को थोड़ी देर के लिए भूल करके गलत रास्ते पर चले जाते हैं। पर आज नहीं तो कल वो इंसानियत हमें अवश्य बताएगी या इस बात को धिकारेगी कि हमने गलत तरीके से उस चीज को अटेंड किया है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सही रास्ते पर चलकर सही कर के द्वारा ही सक्सेस को हासिल करें, और वो मिलता है। पेशेंस और परसिवियरेंस अगर हम रखते हैं तो हमें जरूर अवश्य लाइफ में जो है वो सक्सेस हासिल होगा। ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं होती है, समय लगता है पर जरूर मिलता है। थैंक यू मैम। बट स्टूडेंट है कि चाहते नहीं जितनी जल्दी हो सके हम सफल होकर सेटल्ड हो जाए। हाँ जरूर। तो देखिए आज के पैसेंस समय नहीं है में उनके पास पैसेंस पेशेंस नहीं है, ठीक है, पर आज के समय में ये आपके करियर का, जॉब का एवेन्यूज भी बहुत है। आप सेल्फ रिलायंट भी हो सकते हैं, स्टार्टअप खोल सकते हैं, अगर कहीं नहीं नौकरी हो रही, नौकरी के लिए भी बहुत तरफ कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर जरूर आपको आपका मुकाम हासिल होगा। समय सबको लगता है, हमको भी समय लगा था अपना करियर बनाने में, ऐसी बात नहीं है, इतना आसानी से नहीं होता है, लेकिन हो जाता है अगर लगे रहने, परसिवियरेंस उसको बोलते हैं, लगे रहने पर, मेहनत करने पर वो हासिल अवश्य हो जाता है। ओके। और वैल्यूज तो इंसान में ही देखने को मिलेंगे ना, तो हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को लोग कहें कि इंसान नहीं रहा, इससे अच्छे तो पशु हो गए। तो इसलिए हमें तो वैल्यूज लेके चलना है। थैंक यू मैम। Any other question? Anybody else? Okay, Resham Kumari. गुड इवनिंग मैम। जैसे गांधी जी के थॉट्स का रिलेवेंस आज लगभग हर क्षेत्र में दिखता है, लेकिन कास्ट सिस्टम में क्यों नहीं? अभी भी कास्ट सिस्टम सोसाइटी में है। देखिए हाँ, कास्ट सिस्टम तो है, और कास्ट सिस्टम के बेसिस पर बहुत कुछ हो भी रहा है, और गांधी जी तो ऐसा कभी कुछ नहीं बोले थे। और वही होता है कि गांधी जी के जो आदर्श हैं उसको हम लोग जो ये बार बार याद करते हैं, उसके रेलेवेंस की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि लोगों को याद दिलाया जाए कि ये सब चीजें जो हैं वो गलत है। पर सवाल ये है कि जैसा उन्होंने कहा भी, इसके पहले जो क्वेश्चन था कि लोग जो है वो अपना शॉर्टकट कर करके कुछ हासिल अगर करना चाहते हैं, खासकर पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम को यूज किया जाता है, जबकि गांधी जी का कहना था कि पॉलिटिक्स को हमेशा आध्यात्मिकता से जोड़ के रखना चाहिए। पर ये सब सेल्फिश मोटिव्स है लोगों के, उसके हिसाब से लोग कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये गलत है। कास्ट के बेसिस पर किसी को ऐसा कोई भी सुविधा नहीं मिलना चाहिए जो कि लोग खासकर पॉलिटिशियंस उसको प्रॉमिस करते हैं, और वो अपना ही उसमें उनका अपना ही कुछ ये रहता है, अपना इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट रहता है। तो कास्ट सिस्टम तो बिल्कुल ही उसके बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर कभी भी कोई बढ़ावा हमें नहीं देना। कम से कम हम पढ़े लिखे लोग जो है इस बात को समझें। ये जो हमारा एजुकेशन है, आप जो एजुकेशन ले रही हैं, हम जो आप लोग के साथ बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, ये सब बातें जो है वो विचार विमर्श की ही बातें हैं। जिस तरह से आपके मन में ये प्रश्न उठता है, वैसे मेरे भी मन में ये सब बातें आती रहती हैं, और उसको अगर खत्म करना है तो हम ही को खत्म करना होगा। हम ही अगर आप और हम अगर इस चीज के खिलाफ हो जाए कि कास्ट कुछ नहीं है, कास्ट के बेसिस पर हम नहीं कुछ करेंगे, तो हम इसी तरह समाज सुधरेगा। आपको और हमको ये सब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी समाज में सुधार आएगा। ठीक है ना? ओके मैम, थैंक यू। Okay, is there anybody else? I think that's all. So thank you once again, ma'am. It was a wonderful session. And I take this initiative to thank all the participants
for joining us on all the 4 days. And please fill all the feedback forms and we shall give you an e-certificate. Now I invite Dr. Madhumita to propose vote of thanks. T.S. Eliot has rightly said, what we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where very pleasant good evening to one and all present here. On behalf of the Department of Education, Patna Women's College, I, Dr. Madhumita, express my deep sense of gratitude to the resource person of today's lecture, Professor Amita Jaiswal, Dean, Humanities and Social Science, and Head, Department of Philosophy, Patna Women's College, Patna University. Thank you, ma'am, for giving us your precious time. We feel honored that you shared your profound knowledge with us by putting together different interpretation of Gandhi's view on social, political, and educational issues. Gandhiji political contributions offered us independence, but his ideologies enlightened India as well as the world even today after so many years. Every individual that should follow the key Gandhian ideologies in their day-to-day life for a happy, prosperous, healthy, harmonious, and sustainable future. Gandhianism starts with the famous line, simple living and high thinking. And its objective is to transform the individual society. Therefore, in the turbulent times where the world is grappled with so many problems, it is imperative to strive to inculcate Gandhian philosophy in various facets of life and governance. Thank you, ma'am, for sharing your words of wisdom. I'm sincerely grateful to our respected principal, Dr. Sister M. Rashmi AC, for her immense support, constant encouragement, and able leadership through the various stages of preparation and organization of the lecture series. My heartfelt thanks to Dr. Upasana Singh, Head and Dean, Department of Education, Patna Women's College, for her relentless effort in making this lecture series meaningful. I offer my sincere thanks to all my colleagues for working hand in hand to make the lecture series possible. I take this opportunity to thank all the participants for their enthusiasm and interest. Thank you for joining us from all over the nation and being a part of this lecture series. The lectures have given an opportunity for deeper reflection on the ideology of Mahatma, who paved the path for building the future of the nation by his thought on education and Indian society in general. The relevance of Gandhian thought for a modern India was the focus of our deliberation in the series. So once again, my heartfelt thanks to one and all present here. Thank you, Dr. Madhumita. I take this opportunity to thank all my colleagues for making this program a success. And thank you, ma'am, once again for joining us. And before we end the session, let us have a group photograph. I request all to switch on your video and only video. Is it done? Yes, ma'am. Okay, so thank you once again. We shall meet again on some other platform. Stay tuned, and a very, very happy Diwali, happy Dhanteras, and happy Diwali to all of you. Thank you. Yeah, happy Diwali from my side also. So lot of love Diwali, and ma'am. blessings to all. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, happy Diwali Thank to you, all the ma'am. participants. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, Thank you, ma'am. everyone. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you so much. Happy Diwali, ma'am. Thank you, ma'am. Prabha sir, please end the session.